Congregation, kindly be seated. कृपया सब बैठ जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि संसार में ये प्रथा या नियम तूने हमें दिया है। प्रभु, इस समय इस घड़ी जितने यहाँ उपस्थित हैं, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। प्रभु, तू अपनी इच्छा के अनुसार अगुवाई कर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने ये स्मरण हमें दिलाया कि एदेन बारी में जब तू हमारे आदि माता पिता का पवित्र बंधन में तूने बांधा, आज संसार में जब तक संसार रहेगा उतना तक ये विधि चलता रहेगा। इस समय जो बच्चे दोनों का पवित्र बंधन में बांधे जा रहे हैं, प्रभु, इनका एक साथ चलना शुरू हो रहा है। प्रभु, इन दोनों के जीवन में बहुत सारे समस्याएं आएंगे, बहुत सारे तकलीफ आएगी। प्रभु, इन सबको हल करने के लिए बुद्धि ज्ञान दे। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने ये मौका हमको दिया। प्रभु, इस समय प्रार्थना करते हैं इन दोनों के जीवन में तू हो, इन दोनों का जीवन सुखमय जीवन हो, ये दोनों का जीवन पवित्रमय जीवन हो, जिससे कि संसार में कहीं भी जाएंगे, प्रभु, इन दोनों का स्वभाव को देख करके लोग जान सकें कि ये तेरे लोग हैं और वे तेरा महिमा करें।
प्रभु इस समय इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब को जो आशीर्वाद दिया था, इन दोनों को आशीर्वाद से परिपूर्ण कर, जिससे कि इन दोनों के जीवन से लोग प्रभावित हो सकें और शांति और आनंद का जीवन बिता सकें। जितने इस समय इस घड़ी हम यहाँ उपस्थित हैं, सब तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। बाकी कार्यक्रम जो है उसमें भी तेरा अगुवाई हो। मांगना तो बहुत है, जिसको हमने नहीं मांगा हम सब किया, और इन दोनों को विशेष रूप से आवश्यकता है दान का। ये हमारे छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे नाम से सुना ग्रहण कर, आमीन। Good morning, everyone. I'm delighted to stand in front of the church to introduce the bridegroom. He is Mr. Chanti Budeti, who was born and brought up in Gopavaram, a village nearby Newsville, and that's in Krishna district, Andhra Pradesh. He had his schooling in Vijayawada, Bishop Grassi High School, and after which he had done his intermediate in Machilipatnam. Then after that, he has joined in Newsville Metas College, that is in 2009 to 2013. Then his batch was the first batch in Newsville with BSc course, and it was of 4 years. In 2013, he completed and he joined as a staff nurse in Metas Surat Hospital as a staff nurse. Then he got baptized in 2016 in Ibrahimapatnam, a place near to Vijayawada, and after that he continued his job in Surat Metas Hospital till 2021 July. Then after which he was selected into the Reliance Industries, and henceforth from that time onwards he was continuing, and now he is still working for Reliance Industries in Gujarat. Thank you. Good morning, one and all. I take this as an honor and pleasure to introduce Sara Nirali, who is my sister, beloved sister. She was born just in this campus, then SDA hospital, but right now it is Metas. And she was born on 21st October 1992. And she grew up since a toddler, from toddler, and started her schooling in this campus, in Buxton School, from elementary school, or from kindergarten, and till 3rd standard she was here. In this campus, she ran around in this campus till 3rd standard. After which, she made a decision of her parents, and she was moved to Kurda School, Kurda 7th Adventist School. From the 4th standard till 12th or plus 2 or intermediate, from 2002 to 2011. And after she finished her 12th or plus 2 in 2011, she joined back again as a nursing professional in this campus, Metas 7th Adventist Nursing College. And she pursued her nursing in this campus, in this college, from 2011 to 2015. In between, in 2009, she was dedicated to God, or she took baptism in 2009. And as she pursued her nursing, BSc nursing in this campus, after which she was posted to Metas Surat, and she was posted there for doing an internship or bond for 2 years. And as she finished her internship over there, she took a decision or step
to work there. And since then, till today, till now, she is working there as a staff nurse in Medas SDA Hospital, Surat. She was born to Mr. and Mrs. Paulus Kandulna on October 21st, 1992. Thank you. Once again, I would like to welcome each one of you. हैप्पी वुमेन। मैं आप सबों को फिर से स्वागत करना चाहता हूं कि इस खुशी का मौसम में आप सब हो सकते हैं और परमपिता परमेश्वर ने हम सबों को एक मौका दिया है कि सारा निराली और चांटी का विवाह में हम एक साथ सम्मिलित हो सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि आज आप सारा निराली और ब्रदर चांटी के इस विवाह के ओकेजन में मुझे प्रचार करना होगा और ये मेरे लिए ब्लेसिंग है और इस चर्च में मैं भला बढ़ा और मेरा जो स्टार्टिंग जो हुआ यहीं से हुआ और परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिए हैं और आज मैं बहुत ही आनंदित और खुशी हूँ कि आज हमारे जो कि बेटी का विवाह हो रहा है और जिस तरह से मैंने सारा निराले से मैंने बातें कर रहा था कि नहीं आप मुझे कुछ फोटो चाहिए क्योंकि मुझे स्लाइड शो में दिखाना है। हम याद करेंगे कि किस तरह से आप लोग उनका जीवन था, लेकिन उन्होंने 2 ही फोटो भेजी और उसके बाद मैं 2 फोटो में कैसे मैं पावर पॉइंट बनाऊंगा, तो उन्होंने फिर 2 फोटो भेजी और मैं सोच रहा था कि जितने भी उनके हैप्पी मोमेंट हैं जो घूमे हैं, कहीं जू में गए होंगे, कहीं गए हैं और ऐसा सारे फोटो को मुझे दो। वो कहने लगी मैं घूमी ही नहीं। मैं ऐसे बेटियों का सलाम करता हूं कि उन्होंने इस तरह से अपने को अपने जीवन को अभी तक संभाल करके रखी और एक मसीह का जो हमारे लिए जो कि एदेन की बारी में जो हमें रचेंगे उस नमूना को हम लोग देख सकते हैं। पहली विवाह हुआ और जिस तरह से पहली विवाह में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एदेन की बारी में हुआ और परमेश्वर ने कहा गॉड सेड लेट्स मेक मैन इन आवर इमेज और ये परमेश्वर का पहला वचन था। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। This first man we may regard as a type of the second man, the Lord from heaven, who is the image of the invisible God. If they represent the relationship of the redeemed to Christ, सचमुच में हम सब मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। इससे पहले आदम को दूसरे आदम के एक प्रकार के रूप में मान सकते हैं। स्वर्ग से परमेश्वर जो अदृश्य परमेश्वर के स्वरूप में था, हवा मसीह के द्वारा छुड़ाए गए लोगों के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। इफिसियंस 5:32 में हम लोग पाते हैं कि कहता है यह भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। मसीह और कलीसिया के विषय में कहता है यह भेद तो बड़ा है, विवाह का भेद तो बहुत बड़ा है। हमारा दुल्हा तो यीशु मसीह है और हम कलीसिया जो यीशु मसीह का दुल्हन है। यह भेद तो बहुत बड़ा है और आज हम लोग चलिए हम पहला चीज हम लोग सीखेंगे द डिक्लेरेशन, घोषणा। उत्पत्ति उसका 2:18 में कहता है फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यह डिक्लेरेशन परमेश्वर घोषणा करता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और God considers this man's highest need। इसको हम कहते हैं कि
परमेश्वर आदम का सबसे बड़ी जरूरत जानता था, बड़ी जरूरत जानता था। Think of God away back in eternity saying this regarding the son of his love, not good for him to be alone. The only son bearing the image and reflecting the glory of the Father, he will bring many sons into glory. जिससे कि हिंदी में कारण और सोते हैं कि अकेलापन उसके सबसे महान अच्छाई के लिए नहीं है। आपने प्यारे पुत्र के बारे में यह करते हुए परमेश्वर को अनंत काल में वापस लाने के बारे में सोचे। उसके लिए अच्छा नहीं है कि वह अकेला हो, उसके लिए अच्छा नहीं है कि वह अकेला हो। एकलौता पुत्र स्वरूप धारण करने वाला और पिता की महिमा को प्रतिबिंबित करने वाला, वह बहुत से पुत्रों को महिमा में लाएगा, बहुत से पुत्रों को महिमा में लाएगा। नंबर 2 में हम लोग देखेंगे द न्यू क्रिएशन, नई रचना। परमेश्वर ने एदन की बारी में नई रचना रचा। जिस तरह से उत्पत्ति उसका 18 में कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। Eve was the workmanship of God and his gift to the man in his own image. We are his workmanship, created anew in Christ Jesus. The church is an helpmeet for Christ, is made by him and is the gift of the Father to the Son. हवा परमेश्वर की कारीगरी थी और आदम के लिए उसके अपने स्वरूप में उसका उपहार था। हम उसकी कारीगरी हैं, मसीह यीशु में नए सिरे से बनाए गए हैं। चर्च मसीह के लिए एक सहायक है, उसके द्वारा बनाई गई है और पुत्र को पिता का उपहार है, पुत्र को पिता का उपहार। सचमुच में यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में पिता ने अपने बेटा को कुर्बान किया और उन्होंने कुर्बान के द्वारा एक कलीसिया का निर्माण, और वह कलीसिया हम सब उसके दुल्हन हैं और ये उनके लिए यीशु मसीह के लिए एक उपहार है, भेंट है। इनका रहस्य तो बहुत बड़ा है और जब इस तरह से होता है, जॉन 6:37 में इस तरह से लिखा हुआ है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। ये लव प्रेम, पिता का प्रेम देखिए कि जो कुछ पिता हमें देता है उसे वो कभी नहीं निकालेंगे। जॉन 17:9 में कहता है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। हम लोग सभी कोई परमेश्वर के हैं और इसलिए नंबर 3 में हम लोग द ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन जो एदन के बारी में परमेश्वर ने आदम के द्वारा किया, आदम के साथ किया। और उत्पत्ति 2:21 में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसूली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। पहला ऑपरेशन हम लोग देख सकते हैं कि एदन के बारे में है। एक आदम को नींद में डाल करके उनका एक पसूली निकाल। आप सोच सकते हैं कि ये प्रेम को कि आप एक हवा का निर्माण करने के लिए हड्डी निकाला, परमेश्वर एक पसूली निकाला और इतना बड़ा ऑपरेशन उस एदन की बारी में उन्होंने किया। नींद मौत की प्रतीक है। जब आदम इस अवस्था में था तब ईश्वरीय संचालन के आश्चर्यजनक काम करने वाले हाथों ने उसकी अपनी समानता के अनुसार एक सहायक उत्पन्न किया। यह एक गहरी नींद थी जब प्रभु परमेश्वर ने दूसरे आदम पर मृत्यु का कारण
बना जब उसने अपना सिर झुकाया और प्राण को त्याग दिया। सचमुच में एक आदम को परमेश्वर ने एदन की बारी में गहरी नींद से क्या किया, उनको निर्माण किया, हवा का निर्माण किया। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के हमारे लिए अपना जान दिया और कब्र में वो मृत्यु नींद से तुलना किया गया और मृत्यु का नींद उन्होंने सोया और जब जीवित हुआ तो हमारे लिए एक नई कलीसिया का निर्माण किया, एक नया कलीसिया का निर्माण किया जो हमारे लिए हम उनको कुचले थे। यशायाह 53:10 में कहता है, तो भी यहोवा का यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए रोगी हुआ, हमारे लिए वो बलिदान हुआ, वो हमारे लिए सैक्रिफाइस हो गया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। God took a rib from the first man, but nothing less than the blood of the second man would suffice if a helpmate is to be given him. His church had to be bought with his own blood. परमेश्वर का यहाँ पर बहुत सुंदर वचन हम पाते हैं। परमेश्वर ने पहला आदम से एक पसली ली, लेकिन दूसरा आदम के खून से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। पहला आदम से परमेश्वर ने एक पसुली केवल लिया, लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह पसुली ही नहीं लेकिन उनका खून से हमें मोल लिया है, हमें छुड़ा लिया है। अगर उसे एक सहायक दिया जाए तो उसे खून से ही खरीदना था, अपनी कलीसिया के लिए अपने ही खून से उन्हें खरीदा जाना था। आज हमारे बीच में ब्रदर चांटी हैं और बेटी सारा हैं। आज जो आप दोनों का जो रिश्ता परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ने आप सबों को जोड़ा है और ये हड्डियों से नहीं और किसी दूसरे से नहीं, आप खून का रिश्ता आप दोनों का होगा। खून का रिश्ता आप दोनों के बीच में होना चाहिए। नंबर 4 द प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। उत्पत्ति 2:23 में कहता है, और आदम ने कहा, आप यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। सचमुच में आप हड्डियों में हड्डी हैं और मांस में मांस है, सो इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। Every godlike man may have his wife from the Lord. The Lord brought her to the man. What for? To share his love, to enjoy his fellowship, to be a partaker of the blessings freely given him by God, and to be a joy and a comfort and a help to him. Thus the Holy Spirit brings us to Christ, that we may receive of his and be workers together with him. Every Christian is to be a helpmate to Christ. हम सब मसीह के सहायक हैं। प्रत्येक ईश्वर समान पुरुष की उनकी पत्नी परमेश्वर की ओर से हो सकती है। यहोवा उसे आदम के पास ले आया, किस लिए? अपने प्रेम को साझा करने के लिए, उसकी संगति का आनंद लेने के लिए, ईश्वर द्वारा उसे स्वतंत्र रूप से दिए गए आशीर्वादों का हिस्सा बनने के लिए और उसके लिए एक खुशी और एक आराम और एक मदद बनने के लिए। इस प्रकार पवित्र आत्मा हमें मसीह के पास लाता है कि हम उससे प्राप्त करें और उसके साथ कार्यकर्ता बने। प्रत्येक मसीही को मसीही का सहायक बनना है। प्रत्येक मसीह को मसीह का सहायक बनना है। नंबर 5 में द एक्सेप्टेंस। आप आज ब्रदर चांटी को, बेटी सारा को स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हड्डियों में
कि हड्डी और मांस में कि मांस के रूप में आज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसने हवा को परमेश्वर के उपहार को स्वयं के एक भाग के रूप में स्वीकार किया। वे एक तन होंगे। उसने कभी उसे मना करने के बारे में नहीं सोचा और नहीं कहा कि ये मेरे वाइफ नहीं, ये मेरे पत्नी नहीं है। वो नहीं कही कि नेवर थॉट ऑफ रिफ्यूजिंग हर। वो कही कि नहीं, ये मेरा हड्डियों में से हड्डी। और इसीलिए कहता है आप वे एक तन होंगे, आप वे एक तन होंगे, एक मन होंगे। और इसीलिए जॉन 6:37 में कहता है जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जीसस क्राइस्ट कहा है। और इसी तरह से जो आपको पिता जो गिफ्ट दिया है मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे दिल से लगा कर रखेंगे, हड्डियों में हड्डी, मांस में मांस। और जो आपको पिता गिफ्ट दिया है ग्रेटेस्ट, दुनिया का ग्रेटेस्ट गिफ्ट है और इसको कभी भी अलग मत कीजिएगा। हाउ क्लोज द यूनियन, वी आर members of his body, of his flesh and of his bones. Yes, he will receive you unto himself. कितना करीब रिश्ता होना चाहिए। हम उसके शरीर, उसके मांस और उसकी हड्डियों के अंग हैं। हाँ, वह तुम्हें अपने पास ग्रहण करेगा। नंबर 6, द रिजल्ट, परिणाम। अब क्या इसका परिणाम होगा, क्या रिजल्ट है? उत्पत्ति 2:24 में कहता है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। ये आपका रिजल्ट, ये आपका परिणाम है। और आप सदा के लिए एक साथ आप लोग क्या करेंगे, रहेंगे। जिस तरह से यहाँ पर कहता है हर रिश्ता जो हमें मसीह से चिपके रहने और उसकी सेवा करने से रोकता है उसे तोड़ा जाना चाहिए, उसे तोड़ देना चाहिए। अगर हम वफादार होंगे तो पूरी दिल और जीवन देना होगा। और पूरी देना, नॉट हाफ हार्टेडली, पूरी होल हार्टेडली हम लोग को पूरा जीवन देना होगा। जगत में आने पर मसीह ने अपने पिता को छोड़ दिया। जगत में आने से पहले मसीह ने अपना प्रिय पिता को छोड़ दिया। उसी तरह से आप दोनों को अलग होना पड़ेगा। जब वह क्रूस पर मारा तो उसने अपनी मां को छोड़ दिया। जब उसने क्रूस पर मरा तो अपनी प्रिय माता जो जन्म दी थी उसको छोड़ दिया। वह अपनी माता और अपने छुड़ाए हुए लोगों से जुड़ा रहता है। सब कुछ छोड़ दो और उससे चिपके रहो। आप दोनों आप एक साथ रहे, आप अलग नहीं होंगे, आप मसीह के साथ आप चले। मैथ्यू 16:24 में कहता है तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। आज दोनों एक साथ आप चलेंगे, एक साथ रहेंगे, आप एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे और परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर पर आशीष दे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं छोटे संदेश पर, विशेषकर ब्रदर चांटी, बेटी सारा, दोनों को इन सारे वचनों से आशीषित कीजिए ताकि अपने जीवन में जब चलेंगे तो इनके जीवन में आपके अगुवाई होने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और दया से बड़ा की बात आमीन। मैं अनिल भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई। इतने हमारे आप लोग all the members from the groom side and also from the bride side, we have assembled here to witness the creation of a new family through the ordinance of holy matrimony. आप जितने संत लोग विभिन्न जगहों से आए हैं, ये दुल्हा की तरफ से और दुल्हन की तरफ से भी आज हम लोग यहाँ एक नया परिवार का गठन के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो नया परिवार होगा ये पवित्र विवाह के द्वारा हम लोग नया परिवार का निर्माण कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक दो प्रश्न पूछूंगा।
पहले लड़का को पूछ लूंगा, उसके बाद उनको कंफर्टेबल विद हिंदी और इंग्लिश। हिंदी दूसरे लोग भी सुनेंगे ना। ओके, दूसरे समझने के लिए आप Shanti Babu, Shanti, are you happy that you are here in Ranchi? We welcome you to this century. Now, क्या आपको किसी ने फोर्स किया, लालच दिया कि कुछ जबरदस्ती से विवाह करा रहा है कि अपना कोशिश है? अपना कोशिश है, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सारा, आप कुछ लालच इन्होंने दिया है, धमकी दिया, कुछ किया कि अपने कोशिश है? ओह वेरी गुड, अपने कोशिश है। आप लोग कितने खुश हैं कि इन दोनों का विवाह हुआ आज? आप देखें, ओके वेरी गुड। आप दोनों के विवाह के लिए सारे के सारे संत जन लोग उपस्थित हैं, सब खुश हैं, ओके। लेट मी नाउ ask you a few questions, and you only say I do. Thank you, maybe okay. For as much as you, Shanti Babu, and you, Sarah, have come here to be united in the holy bond of wedlock, you may now signify your desire to be so united by joining your right hands. Join your right hand. Thank you. Now, Chanti, do you take this woman to be your lawful wedded wife? Do you solemnly promise today before God and these witnesses, and in health, in prosperity, or in adversity, and forsaking all others, keep yourself only unto her, so long as you both shall live? Yes, sir. Okay? हमने सुना, इन्होंने इनको, मैंने कहा प्रतिज्ञा क्या है, इसको इनका देखभाल करेंगे। सारा से पूछेंगे सेम थिंग। सारा, do you take this man to be your lawful wedded husband? Yes, I do. Okay, thank you. Do you solemnly promise before God and these witnesses that you will love him, honor him, and cherish him in sickness and in health, in prosperity or in adversity, and forsaking all others, keep yourself only unto him, so long as you both shall live? Yes, I do. Now, since you both have, आप दोनों ने एक दूसरे को वचन दे दिया है, तो आप इतने गवाहों के बीच में और इस पवित्र भान में ईश्वर को साक्षी मानकर आप दोनों ने दिया है, इसलिए आप दोनों हम विवाह का बंधन में बांधने जा रहे हैं। चले हम जितने यहाँ उपस्थित थे, मिनिस्टर का आदरीगण कहूँगा, हम लोग आप लोग सुनिए। Any ordained minister here? महान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला और मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाने वाला प्रभु जी, तेरा बहुत शुक्रगुजार है। हम सब कैसे सोच सकते हैं कि आज एक पवित्र विवाह के द्वारा सारा और चंटी का एक परिवार निर्माण करना है। प्रभु जी, इन दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, वे हर समय, हर घड़ी, हर बार एक साथ एक दूसरे का नहीं छोड़ेंगे।
एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, विश्वास रहेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे। प्रभु जी, सिर्फ ये दोनों आपस में अपने ही नहीं, परंतु दो परिवार के सदस्य को भी ख्याल करेंगे। और हाँ प्रभु जी, कलिसिया का भी सहायता करेंगे। इसलिए प्रभु जी, इन दोनों को तेरे हाथ में अर्पण कर देते हैं। इन्हें तो संभाल प्रभु, जैसे वे विवाह के बंधन में बांधे जाते हैं और नई जिंदगी में चलते हैं, ये राह कठिन होगा, ये फूलों से नहीं होगा प्रभु जी, परंतु कांटेदार राह होगा। कठिन समय आएंगे और दुख तकलीफ होंगे। इसे प्रभु चाहते हैं तेरा स्वागत इन दोनों का आगे आगे चले और इनका परिवार का रक्षा करे। इन दोनों का परिवार से प्रेम की ज्योति चमके, इससे कि अगल बगल के लोग जाने कि सचमुच में चंटी और सारा तेरे बच्चे हैं, तेरे लोग हैं। और इनका परिवार को देख करके बहुत सारे लोग तेरा सच्चाई बनाए। इसलिए इन दोनों को तेरे हाथ में अर्पण करते हैं। और प्रभु, हम जो यहाँ अभिषेक तेरे दास आदि तेरे वचन के अनुसार इन दोनों के ऊपर हाथ रख करके इन्हें आशीष देते हैं। हे प्रभु, जैसा तूने आज्ञा दिया, या हुआ अब दोनों को आशीष दे और रक्षा करे। या हुआ अपना मुख का प्रकाश अब दोनों के ऊपर चमकाए और अब दोनों पर अनुग्रह करे। या हुआ अपना मुख अब दोनों की ओर करे और अब दोनों को शांति दे। ये हमारी दुआ, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। तेरे आने तक इन दोनों को विश्वास में रख, संभाल, दुआएं और मजबूत कर। इस परिवार एक आनंद का परिवार है दोनों का, और एक नमूना बना रहे, क्योंकि हमने यीशु ख्रीस्त का नाम के द्वारा चाहा है। तो सुन और ग्रहण कर। विवाह का जो पहला पार्ट तो समाप्त हो जाए, जो आप रजिस्ट्री के लिए जाएंगे। मैं चाहूंगा कि 3 गवाह आए, एक लड़का की तरफ से और एक लड़की की तरफ से और एक कलिसिया की तरफ से आए। इन दोनों का विवाह के बांधे जाने के लिए। गवाह के लिए आए, विटनेस विटनेस आइए। चिंता न कर
से आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा तेरा यीशु पे रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। तेरी उंगली को पकड़ के तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। आंधियाँ तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। उनका विवाह पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं कहूँगा जानती आप अनवेल वाइफ नाम अनवेल है। दोनों की विवाह हो गई है, शादी हो गए हैं, और इसलिए आज मैं प्रयास के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के दास होकर के और सरकार से अधिकार प्राप्त करके एज अ मैरिज रजिस्ट्रार मैं कानूनन दोनों को पति और पत्नी घोषित करता हूँ। आज से ये दोनों कानूनन पति और पत्नी हैं। ये दोनों today you are lawfully wedded husband and wife. मैं नहीं जानता हूँ ऐसा एक दूसरे को बुलाएंगे, कुछ जानेंगे लोग, मैं इसे नहीं कहूँगा, लेकिन मैं
आज क्या होगा, आज से वो श्रीमती चंटी कहलाएगी और ये श्री चंटी बाबू आज तो पहले से कहा चंटी है, आज से श्रीमती कहेंगे। और इसके रिवाज में मैं ये सर्टिफिकेट दे रहा हूं दोनों को, ये वक्त में काम आएगा, इसलिए अब दोनों को विवाह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और आज से आप दोनों फिर पति और पत्नी हैं। और अभी मैं चंटी बाबू से कहूंगा, और मैं सबको कहता हूं लेकिन आपको कहूंगा, विवाह हो गया है, शादी हो गई है, कैसा है कार्यक्रम समाप्त होता है, न्यूक्लियस मोड़ लेकर के जाएंगे। Anyway, she will join. And then, very good, And then we have a royal retreat here. You can take the royal retreat. No, this side we have, I have told others also. क्या है लोग बताने कौन से जगह है? हाल में शादी किसकी हुई है? Moments, beautiful place, ठीक है? ओके, जो ईश्वर ने जोड़ा है, कोई इससे कोई मनुष्य इन्हें अलग न करे, ईश्वर। थोड़ा सा आप दोनों मेरे तरफ देखना चाहता हूँ आप दोनों को। मैं उधर बैठा था पीछे, तो ठीक से नहीं देख पाता, आप दोनों को देखने के लिए मैं सामने चला आया। मिस्टर चंटी और मैडम सारा पवित्र विवाह में बांधे गए हैं और यह बहुत खुश का समय है। और रजिस्ट्रार साहब ने यह भी कह दिया कि मनुष्य इसको किसी भी तरह से ना अलग करे, ना तोड़े। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप सारा को कितने दिनों से जानते थे? माइक है क्या, पॉकेट? छह साल से, ये भी ठीक है। तो उसी समय से प्यार करना शुरू की। हाँ बोल रही है। तो ये फास्ट काल में इन्होंने तो देखा, प्यार किया और प्रेजेंट टेंस में प्यार करूंगा, फ्यूचर टेंस में भी जो है मैं प्यार करूंगा। और सारा कितने दिनों से जानती हूँ, कैसे होगा 6 साल? 6.5 नहीं हो भी सकता है। अच्छा, यहाँ पवित्र शास्त्र में Matthew chapter 5 and 14 to 16 valuable sentence. The gospel writer Matthew has written. उसमें कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। आप दोनों को जो है दर्शाया गया है कि आप दोनों जो है जगत की ज्योति। दूसरा जो है फिर प्रभु यीशु मसीह जहाँ तक सुसमाचार के 8वें अध्याय उसका 12 पद में कहता है कि मैं जगत की ज्योति, और आप दोनों को आदेश देता है तुम दोनों जगत की ज्योति। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति। जैसा ये जो है आइज़ाया चैप्टर 60 एंड वर्स 1, इसमें यह कहता है, उसमें कहता है कि राइज एंड शाइन, उठो जागो और चमको। आज जो है आप दोनों का विवाह हो गया है, नया परिवार गठन करने जा रहे हैं।
छोटी कलिसिया आप गठन करेंगे, इसी तरह से हम दोनों के मन हृदय में प्रभु यीशु मसीह हरदम चमकता है। आपने जीवन में जो है कभी अंधकार को ना आने देते, प्रज्वलित होता है और परमेश्वर आप दोनों को अगुवाई करता है। अब यहाँ पर और एक चीज मैं देख रहा हूँ, बड़ा सा खूंटा जैसा, अब थोड़ा नजदीक आ जाइए। ये यूनिटी कैंडल कहा जाता है इसको, और ये एकता का मौन बत्ती के लिए प्रज्वलन करना है। क्या मैं माता पिता को बुलाऊं? आप जो है आइए, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए प्लीज। क्या अच्छा बेटी, वहां उन दोनों को पकड़वाइए आप। ओके, ये जो चाची और सारा, इन दोनों के अभिभावक यहाँ जो मोमबत्ती पकड़े हुए हैं, अभी ऐसे करें कि ये सारा के अभिभावक आकर के सारा को इसको समर्पित करें बत्ती, और आप दोनों आइए हंडी के बाद चाहिए। आप जो है दोनों जन आ जाइए। अब आइए, ये दोनों जो है परिवार गठन करने के बाद ये दोनों एक साथ काम करने का प्रशिक्षण भी यहाँ पर रजिस्ट्रार साहब जी ने हुक्मनामा जारी कर दिया है, इसलिए दोनों आप दोनों चले। ये देखिए, धन्यवाद। ये जो है कैंडल खोलेंगे। ये तो पहले काम हो गया, पति पत्नी हो गए तो पहले काम हो गया। बत्ती कैसे जलाना है, जला लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कैंडल भी ठीक से नहीं चलता, कभी बुझता है, चमकना चाहिए। क्योंकि यशायाह की किताब 7 अध्याय 1 पद में मैंने पढ़ा, उसमें कहता है राइज एंड शाइन, उठ और प्रज्वलित हो, चमको, बोल करके बोला है। तो और कुछ है? हाँ ठीक है, तो आइए लाइए इसको पहले आप लोग हटाइए। हाँ थोड़ा इधर, इधर हो लेता पहुंचेगा ना। क्या बोलोगे? बोलना है पहले, मैं प्यार करूंगा, करता रहूंगा, नहीं भूलूंगा, इसलिए माला पहनाता हूं। अब सारा, मैं सदा प्यार करूंगी। बस इतना ही बोलो। नहीं बोलते शुरू होता। खुशहाल जिंदगी जिए, खुशहाल परिवार जिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान दें।
तो आप जरूर कल्टिवेट करेगा, आशीष देता रहेगा। मैं तो सभा जो खड़ी हो जाए, हम सब अंतिम प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष, तेरी दया, अनुग्रह के लिए पवित्र विवाह की स्थापना तूने एदन बारी में की और तूने आशीष दिया, और यह पवित्र उपासनालय में चांटी और सारा दोनों ने वाचा बांधा, प्रतिज्ञा किया जीवन पर्यंत साथ रहेंगे, और इसलिए हम कलीसिया के पुरोहित गण प्रभु यीशु मसीह के आदेशानुसार इन्हें आशीर्वाद प्रदान किए। ये दोनों का जीवन यात्रा सुखमय हो, शांतिमय हो। तेरी अगुवाई में ये दोनों भले चंगे रह करके प्रतिदिन तुझे स्मरण करते हुए स्वर्ग की ओर अपने निगाहें उठा करके धन्यवाद देते रहे, घुटने के बल जाकर तुझे सदा और हरदम धन्यवाद देते रहे। चांदी और सारा को तेरे हाथ में अर्पण करते हैं। आशीष, इन्हें तो आशीष दे, तेरा अनुग्रह और दया इन दोनों पर भरपूरी से रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, देकर सुन ग्रहण कर। आमीन। आमीन। I would request the audience to kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। I am standing here on behalf of Mr. Paulus Kandula and his family to thank all of you who are present here. मैं यहाँ पे धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूँ, और मैं खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पे जो स्टेज में मौजूद हैं। मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर विल्सन मुंडू, यहाँ के चर्च पास्टर कैप्टन हैं, जो हम सबके यहाँ मौजूद हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर अनिल कंडुल्ला एंड खास करके पास्टर अनिल लकड़ा को आज का उपदेश देने के लिए, पास्टर सी मुर्मू को जो शादी का समारोह का जो उन्होंने वेडिंग सोलेमनाइज किया, Pastor Peter Surinko. And I would also like to thank all the relatives who have come from far and near. जितने भी रिश्तेदार आए हुए हैं, हमारे रिश्तेदार टोनिया से, रनिया से या कहीं भी आसपास से, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। I would also like to thank the Gudelti family, friends and relatives who have come here to bless the newly wedded couple with your presence. And I would also like to congratulate, I would call him Baba, Chanti, and my sister Nirali. I wish them happy married life. And after the ministers would leave, we all can move towards the college ground. Thank you. ऊपर मार, ऊपर 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 मार, ऊपर।
एक बार इधर फूल माला के साथ
बोलेगी अभी प्रोग्राम शुरू कर लेंगे उसके बाद चेंज कर लेंगे। एक बार यहीं गाड़ी के पास एक बार खड़े हो जाओ। वो जो शायद वो अब नहीं रखा रहेगा उनका वाला, जितना दूर से आए वो लोग पहले वो जो बुला दिया तो लंबू वो बैग वहीं के लिए है ना, लाल वाला वहीं का है। हाँ हमारे जो दुल्हा दुल्हन जो मंच पर चले आए हैं, एक बार सबसे ताली बजा दीजिए। मंच पर जो आ गए हम स्वागत गान वाले सब कृपा करके आइए। स्वागत 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 वृंदावने मैया आए के स्वागत 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 वृंदावने मैया आए के लागे बिनरे लड़की स्वागत 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 वृंदावने मैया आले के स्वागत 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 वृंदावने मैया आले के लागे बिनरे लड़की स्वागत 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 वृंदावने मैया आले के
यहाँ पर जो ये केक 3 मंजिला बना हुआ है। कितना बना है? 3 मंजिला है। इसका मीनिंग, इसका माने क्या होता है? तो यहाँ पर जो 3 मंजिला केक जो है यहाँ रखा गया है और इसका अर्थ 3 मंजिला है, इसलिए इसका अर्थ होता है आई लव यू, आई लव यू। कृपया करके आप दोनों जो है उसको पकड़िए। ये कटा नहीं रहा है। वेडिंग केक बहुत मजबूत है। बड़ा काटो। ठीक है, अब जो है पकड़िए, अब एक दूसरे को खिलाइए, ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, उनका तरीके से